बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Dear students, we start our today's class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 6 and the period is English language text. This is week 6 and the video number is 5. Students, in our previous class we had started our last unit of final term, unit 10, film study, and in that video class we had studied the different elements of a movie, the formal definition of a movie, and with that we have also studied how these elements are important for understand in order to analyze any movie. So today in this video class, first we will discuss the vocabulary and study about the term standard English. After this we will do the movie analysis of movie Tare Zameen Par. Okay, so let's start our first topic, which is vocabulary, on book page 268. What is standard English? Standard English is the form of English that is most acceptable to the largest number of people. Standard English is the form of English that is most acceptable to the largest number of people. Means it is the form of English that is most appropriate for almost every purpose and audience. That is the reason why it is very important for us that we learn to speak and write standard English. Generally we see two forms of standard English in the world. The first is British English and second American English. British English is the form of English that is used in United Kingdom, and American English is the form of English that is used in United States, that is America. Okay, so both forms of English, both forms of standard English, means American English and British English, we see the difference in pronunciation, vocabulary and spelling. Okay, let's understand this difference through this table. Okay, in British English, British pronounce this word advertisement. British says advertisement, whereas American says advertisement. In British, the word is class, chance, example. American says class, chance, example. In British, they says the civilization. American says civilization. Okay, so this is the difference in pronunciation in British English and American English. We have also find the difference in vocabulary. For example, in British English the word is torch, in American English the word is flashlight. In British English the word is wardrobe, in American English the word is closet. British says rubber, American says recess. British says break time, American says okay. In British the word is rubber for, okay, the word is rubber, and in American the word is razor. In British they says the break time, and in American they says the recess. In British the word is timetable, and in American they say schedule. So this is the difference in vocabulary in British English and American English. The next difference we find is the difference of spelling in both forms of English. For example, in British English the spelling of the word color is
C-O-L-O-U-R. And in American English, the spelling of this word is C-O-L-O-R. Means without you. The spelling is without you. Color spelling without you. Favorite, F-A-V-O-U-R-I-T-E. In American English, there is no U in favorite. F-A-V-O-R-I-T-E. In British English, we find the spelling of center is C-E-N-T-R-E, and in American English, the spelling is C-E-N-T-E-R. Okay. The word judgment, J-U-D-G-E-M-E-N-T, judgment. And here, J-U-D-G without E, M-E-N-T. So this is how we see the difference in pronunciation, vocabulary and spelling in both forms of English, means in British English and in American English. Okay. Now our next topic is movie analysis, and we'll watch a movie as a class, and while we're watching a movie, we'll do the analysis of a movie and relate the elements of a movie with that movie Taare Zameen Par. Okay students, let's start watching the first scene of the movie. The movie's name is Taare Zameen Par, and we will see the first scene in which we will find the credits of the movie. Students, as you have seen this first scene of the movie, in which we have seen some credits of a movie, means जो credits हैं movie के, जिन्होंने movie की नहीं contributions की, PVR Pictures presents and the production house name आमिर खान production. आमिर खान ही इस movie के producer भी हैं, और जो first character है इस movie का, who is the protagonist of the movie, whose name is Ishan. He is the main character and the hero of the movie. Okay, let's watch the next scene. कसके जूता कसके बेल्ट हाउस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये अमृत पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना पर दे जाते दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो यहाँ अलग अंदाज है जैसे छिड़का कोई साज है हर काम को टाला करते हैं
ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा चले रहो, क्यों मंजिल का इशारा चले रहो, क्यों दुनिया का नारा चले रहो, क्यों मंजिल का इशारा चले रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। ये हवा पटोरा करते हैं, बारिश की बूंदें पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा चले रहो, क्यों मंजिल का इशारा चले रहो, क्यों दुनिया का नारा चले रहो, क्यों मंजिल का इशारा चले रहो, क्यों दुनिया का नारा चले रहो। Okay, so students, in this scene, we have seen the family members of Ishan. His father, who is a very responsible person. उसके father को दिखाया गया बहुत responsible है. His mother, जो second character है, एक typical household lady है, और ईशान के जो बड़े भाई हैं, brother हैं, ठीक है, उनका name है योहान. He is also a very active and disciplined student. साथ साथ जो है वो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ईशान का केयरफ्री एटीट्यूड, जो कि इस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है, और वो अपनी मॉम पे डिपेंड करता है अपने कामों के लिए, अपने तमाम काम मैनेज करने के लिए उसकी मॉम पे डिपेंड करता है। अपने दुनिया में खुश रहने वाला बच्चा है, इमेजिनेशन में रहता है, पेंटिंग उसका पैशन है, और उसका जो मैसी रूम है वो ये बात बता रहा है कि उसका जो इनडिसिप्लिन एटीट्यूड है। इस पूरे फैमिली में जो है वो सारे ही सब पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन से रहते हैं, बट ईशान का जो नेचर है वो कैसा है, इनडिसिप्लिन है। और इन दिस सीन वी सी द फर्स्ट सेटिंग ऑफ अ मूवी। ईशान का जो घर है ये इस मूवी का सेट है। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है ईशान का, उससे हम जज कर सकते हैं ये बात कि एक डिसिप्लिन हाउस है, वहाँ पे ईशान जो करेक्टर है थोड़ा सा मिसफिट है इनडिसिप्लिन नेचर की वजह से, उसके साथ डिसिप्लिन प्रॉब्लम है। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट सीन, ईशान इन क्लास। Read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे। Silence. Speak in English. The letters are dancing. They are dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. ओके, तो इस सीन में जो है वो सेकंड सेट दिखाया मूवी का। तो सेकंड सेट ऑफ द मूवी इज ईशान स्कूल. ईशान इज अ थर्ड ग्रेड स्टूडेंट एंड वी सी द टिपिकल एटमॉस्फेयर ऑफ अ स्कूल इन दिस सीन. ईशान की जो इंग्लिश की टीचर है उसे मोटिवेट करती हैं क्लास में रीडिंग करने के लिए, बट ईशान के साथ जो प्रॉब्लम है वो रीडिंग प्रॉब्लम है, वो रीड नहीं कर सकता वर्ड्स को प्रॉपरली. ईशान ये प्रॉब्लम अपनी टीचर से शेयर भी करता है, तो टीचर को अंडरस्टैंड नहीं होती, वो उन्हें लगता है कि शायद वो क्लास में फन क्रिएट करने के लिए ऐसा कह रहा है, तो वो उसे फिर पनिश भी कर देती हैं. ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन.
वापस पनिश पनिश होता है डफर। ये डपर हर टाइम क्या पनिश होता है? गोइंग। ओके, तो इस सीन में हम अब देखेंगे ईशान यही कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है पूरी मूवी में। उसको जो टीचर्स हैं उनके इसका प्रॉब्लम टीचर्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उससे वो ऑल द टाइम पनिश कर देते हैं। क्लास के बाहर पनिशमेंट में उसका टाइम उसका स्पेंड होता जाता है स्कूल में। और बहुत फनी सा सीन था। ईशान ने अपना जो टाइम बाहर पनिशमेंट में एंजॉय किया, और उसको जो है वो उसके इस पनिशमेंट से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती उसके बिहेवियर में, उसकी स्टडीज़ में। और जब भी उसको स्कूल से टीचर्स नोट्स देती हैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, तो वो नोट्स भी हाइड कर देता है। और इस तरह से पेरेंट्स जो है पेरेंट साइन भी उसकी कॉपीज़ पे नहीं होते हैं। इस तरह से पूरी मूवी में फिर कॉन्फ्लिक्ट है, ये पूरा प्लॉट है मूवी का जो हम देख रहे हैं। ओके, विल सी द नेक्स्ट सीन ऑफ द मूवी। वाओ, ये क्या है यार? सुपर्ब। ओके, सो ईशान अब इस सीन में हम देख सकते हैं क्लियरली कि ईशान पेंटिंग कर रहा है। पेंटिंग इसका पैशन है। जब भी वो स्कूल से उसको मेंटल स्ट्रेस होता है इस तरह से बार बार नेगेटिव एटीट्यूड देख के टीचर्स का, और फिर घर पे भी पेरेंट्स उसको जो है वो उसकी स्टडीज के लिए या डिसिप्लिन एटीट्यूड के लिए उसको डांटते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ईशान अपने सारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए पेंटिंग करता है। पेंटिंग जो उसका टैलेंट है, और ये क्रिएटिविटी ऑफ आर्ट के लिए उससे उसके पेरेंट्स और टीचर्स अप्रिशिएट नहीं करते। और उनका जो सारा फोकस है टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी वो यही है कि ईशान पढ़ाई में स्टडीज में क्यों आगे नहीं है अपने भाई योहान की तरह। ओके, द नेक्स्ट सीन ऑफ द मूवी। के मार्क्स फाइनल में गिने जाएंगे, तो इसलिए जरा ध्यान से। टेक 1 एंड पास द रेस्ट। हियर। मिशन इम्पॉसिबल नहीं निकला। उसका मिशन सूरज से लीज प्लैनेट अर्थ को खींचकर सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट प्लूटो में एंटर कर देना है। 389 अब 39 में इंटू होने जा रहा है। प्लूटो is destroyed। वो प्लैनेट ही नहीं रहा। ढूंढ लिया। निशान ने जवाब ढूंढ लिया। 3 into 9 का जवाब है 3। टाइम अप। कैसा था टेस्ट? ओके, तो इस सीन में हम क्या देखते हैं कि अनयूजुअल इमेज एंड सीन, अनयूजुअल सा इमेज और सीन हमने पूरा देखा। ईशान जो है वो
इसने सीन में किस तरह से अपनी इमेजिनेटिव माइंड से मैथ्स के सम्स को जो है सरप्राइज टेस्ट जो था उससे मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरह से इमेजिनेशन को यूज़ किया और किस तरह से कनेक्टेड सीरीज हैं सारे इमेज फॉर्मेशन जो उसके माइंड में फॉर्म हो रही है और उसके लिए जो है वो जो उसने टेस्ट सॉल्व किया उसने सिर्फ वन पार्ट ही टाइम कर सका उस टाइम पीरियड में और वो जो है वो टाइम खत्म हो गया लेकिन उसके लिए आउटस्टैंडिंग है बहुत वो लेकिन जो है वो टीचर्स जो है वो टीचर जब उसका वो टेस्ट चेक करेंगी और फिर वो बाद में मीटिंग भी जो है वो कॉल करेंगी क्योंकि उसकी प्रोग्रेस जो है वो डे बाय डे यही लो ग्रेड्स होते जा रहे हैं उसके इस तरह से जो है वो ईशान जो है वो अपनी दुनिया में तो खुश रहता है लेकिन बाकी सब उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो ये जो है वो सारा मूवी का प्लॉट अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट सीन बिल्कुल पिछले साल की तरह बुक्स स्टिल इज एनिमीज पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है जानबूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है all the time asking for permission to go to the toilet. And thirsty? ओके तो इस सीन में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई है उस पर पेरेंट्स और टीचर ईशान के प्रोग्रेस को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और वो जो प्रॉब्लम है ईशान की वो टीचर्स ने अंडरस्टैंड सिर्फ यही कर सकें कि ईशान की अटेंशन नहीं है क्लास में या ईशान जो है वो क्लास में एक्सक्यूजेस करता रहता है तो इसके बाद मीटिंग के बाद पेरेंट्स को जो सजेशन देती हैं प्रिंसिपल वो यही देती हैं कि ईशान हो सकता है मे बी ईशान के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो कुछ कोई डिसेबिलिटी है उसे और फिर वो इस स्कूल के लिए बहुत मिसफिट है तो उसे किसी ऐसे स्कूल भेजा जाए जो कि ऐसे स्टूडेंट्स की नहीं होता है स्पेशल स्टूडेंट्स की नहीं होता है तो वो रिकमेंड करती हैं उनके फादर को कि उससे जो है वो एक स्पेशल स्कूल भेज दें और फिर वो फादर जो है वो उन्हें ये बात बिल्कुल अपने सन के लिए अच्छी नहीं लगती तो वो उसको फिर उसकी इस नेचर को जो कि ईशान जो है वो स्कूल में अटेंशन नहीं दे रहा है और घर पे डिसिप्लिन शो नहीं करता इसके इस प्रॉब्लम के लिए वो क्या सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए जो है वो उसको जो है वो बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए उसका एडमिशन वहां करवा देते हैं ओके लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ और मैं टीवी जाकर कपड़े बदलो खाना खाने के लिए कमान तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊंगा भेजना इतना दूर मुझको तू याद भी तुझको आना पाऊंगा क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ क्या इतना बुरा अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो कपड़े नहीं बदले चलो जाए कपड़े बदलो कमान जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही तो आगे थामेगी माँ उनसे मैं
ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। Okay, so in this scene, we can clearly see in the conflict of a movie. Again, Ishan, who was forced to go in boarding, and where he don't want to go. Means ईशान जो है वो बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले काफ़ी घर पे शाउटिंग करता है और जो है वो मना करता है कि बोर्डिंग स्कूल उसको नहीं जाना, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे फोर्सली वहाँ भेज देते हैं। अब यहाँ पे आके उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है और वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि अपनी मॉम के बगैर वो कभी रहा नहीं है, तो उसको सारे काम मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होगी और यहाँ पे आके वो और डिप्रेस हो जाएगा फैमिली से दूर। जो पेरेंट्स उसके लिए सोचते हैं कि यहाँ जाके वो सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी बल्कि वो और डिप्रेस हो जाएगा। ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन। क्यों भाषा खराब, क्यों न देते जवाब, क्यों करती नहीं try, why can't you? This side can drive anybody mad. Someone please call up his dad. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? मूर्ख शिरोमणि। दाहिने हाथ में हाथ। ओके, सो इन दिस सीन यहाँ पे हम दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं जो ईशान फेस कर रहा है बोर्डिंग में आने के बाद। जो टीचर्स उसको यहाँ न्यू मिले हैं तो वो और भी ज़्यादा उसको टफ टाइम दे रहे हैं, प्रीवियस टीचर्स के कंपैरिजन में वो और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उसके साथ कर रहे हैं और उसको इस तरह के टाइटल्स दिए जा रहे हैं लाइक डफर, लेजी, क्रेजी। और इससे जो है वो क्या इम्प्रूव करेगा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इससे और डिप्रेशन वो फील कर रहा है। थ्रू द combination of music and sound effect we can feel the pressure in which Ishan is stuck, and we can also understand his emotion of depression and hatred towards studies। मतलब उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रही बल्कि वो और स्टडीज से भी दूर जा रहा है और डिप्रेस भी हो रहा है, और वो प्रेशर जो है वो उसके ऊपर बहुत बढ़ गया है यहाँ आने के बाद फैमिली से दूर। ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन। और रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया
ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग है बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बोले, बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोल। ओके, तो इस सीन में एक और न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, जो ईशान के बोर्डिंग स्कूल में न्यू आर्ट टीचर हैं, उनकी एंट्री हुई और वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं इमेजिनेशन को यूज़ करने के लिए अपने अपने आर्ट में। तो उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि पूरी क्लास जब इस सीन में एंजॉय कर रही है, पूरी क्लास इंटरेस्ट शो कर रही है, तो ईशान बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा क्लास में, क्योंकि वो डिप्रेशन में है ना। तो इसलिए अब जो है वो इस आगे के जो स्टोरी हाउस में प्लॉट में वो इस बात को जो है वो नोटिस करेंगे और फिर वो जो है वो क्यूरियस हो जाएंगे ईशान की नहीं बहुत, और वो ईशान के फ्रेंड राजन से बात भी करेंगे इस बारे में कि ईशान के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वो उन्हें बताता है कि ईशान क्योंकि बहुत ट्राई करता है, ईशान ऐसा नहीं कि वो डम स्टूडेंट है, बिल्कुल वो ट्राई तो करता है लेकिन वो राइटिंग और रीडिंग नहीं कर सकता, उसकी पूरी कॉपीज में रेड मार्किंग भी होती है। और दूसरा प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है, जिसकी वजह से वो उसका एटीट्यूड इस तरह से है क्लास में। इसके बाद फिर वो इस चीज़ को और कंफर्म करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है रीडिंग और राइटिंग में, वो इसकी कॉपीज को भी चेक करते हैं। तो वहां से उन्हें आइडिया हो जाता है कि ईशान जो है वो उसके साथ जो एक प्रॉब्लम है वो है डिसलेक्सिया। तो जिसकी वजह से उससे प्रॉब्लम है रीडिंग में, राइटिंग में, एक डिसऑर्डर है। और इसकी वजह से ईशान की जो इमेजेस हैं, जो लेटर्स हैं, वो उल्टे फॉर्म होते हैं। उसका जो इमेज है ईशान ईशान के माइंड में इन्वर्टेड फॉर्म में फॉर्म होता है लेटर्स का, और उसको इसी वजह से जो है वो सारे लेटर्स उसको जब वो रीडिंग करता है तो वो मूव करने लगते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है रीडिंग में भी। और जब वो रीडिंग नहीं कर पाता तो इसकी वजह से वो राइटिंग भी नहीं कर सकता। तो यहाँ से इस एटीट्यूड को देख के शान के अब जो है वो उसको कॉन्फ्लिक्ट जो फेस करने पड़ेंगे, जो उसकी हेल्प करेंगे, इसके आर्ट टीचर इसकी हेल्प करेंगे उसको इस डिप्रेशन से निकालने के लिए। ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन। ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दी, खो न जाए ये तारे जमीन जैसे आँखों की डिबिया में दुनिया और दुनिया में मीठा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। Okay, तो in this scene tells us the theme of the movie. तो इस सीन में एक डीप मैसेज गिवन है फॉर द पेरेंट्स। जिस तरह से हमने सीन में देखा कि जो ईशान के जो टीचर हैं, आर्ट टीचर, वो एक ट्यूलिप स्कूल है वहाँ पे भी टीचर हैं, और वो उस स्कूल में जो है वो डिसेबल स्टूडेंट्स जो हैं
उनकी हेल्प करते हैं स्टडीज़ में। अब यहाँ पे जो है वो एक डांस परफॉर्मेंस है जिसमें दो तरह के पेरेंट्स दिखाए गए हैं। डांस परफॉर्मेंस में जो है वो एक पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनकी एफर्ट्स के लिए जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह से फिर सीन कट होने के बाद जो नेक्स्ट सीन है उसमें हम दूसरे तरह के पेरेंट्स भी ऑब्जर्व करते हैं जो कि एक ईशान के पेरेंट्स हैं। और ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो ईशान का जो बड़ा भाई है योहान, वो क्या करता है, वो जब एक परफेक्टली ट्राई करता है, एक परफेक्टली एबल चाइल्ड है, वो अपना बेस्ट करता है कि वो मैच विन करे, लेकिन उससे नहीं हो सकता। तो एंड में जो है वो उसका जो फेलियर है उसकी वजह से जो उसके पेरेंट्स हैं उसकी जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं और वो उसको जो है वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते और वो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है उसके बाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो तरह के पेरेंट्स जो एक जो है वो अपने एक्सपेक्टेशन का बर्डन जो है वो अपने बच्चों पे नहीं डालते और उन्हें सपोर्ट करते हैं कि वो सोसाइटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो स्टैंड हो सकें। डिसेबिलिटीज होने के जो है वो बावजूद भी किस तरह से जो है लोगों के बीच में स्टैंड करना है विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक तो इस तरह के पेरेंट्स हैं और दूसरे पेरेंट्स जो है जो ईशान के तरह के पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का बर्डन डाल देते हैं। और यहाँ तो सिर्फ वो योहान पे इतना प्रेशर है तो हम फील कर सकते हैं इजीली कि ईशान जो है वो फिर कितना प्रेशर में होगा, इनके एक्सपेक्टेशन की वजह से कितना प्रेशर में होगा। और तो दिस इज द थीम ऑफ द मूवी। ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन। ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों के जरिए, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूर्य होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है कल से कल के किसी को पड़े, जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मुझे तेरा जादूरा खुश करे, जैसे कहते कहते मीठे से शब्द, जैसे प्यार की धीमी सी धमकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। ओके, तो इस सीन में जो ईशान के जो टीचर हैं मिस्टर निकम, वो डिसाइड करते हैं कि ईशान के पेरेंट्स से मिला जाए डिस्कस करने की उसकी प्रॉब्लम को। तो वो जब यहाँ पर आते हैं ईशान के घर पे तो वो ये बात उनको पता चलती है कि ईशान जो है वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड रखता है, उसको जो है वो पेंटिंग उसका पैशन है। अभी तक स्कूल में जो है वो पेंटिंग करना स्टॉप कर चुका है, पेंटिंग छोड़ चुका है, डिप्रेशन की वजह से पेंटिंग नहीं करता, क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करता। अब यहाँ पे आके जो है वो इन्हें ये नई बात पता चली ईशान के बारे में कि ईशान जो है वो जो है वो कितनी अच्छी पेंटिंग्स करता है और अब जो है वो इस डिप्रेशन की वजह से वो ये काम भी छोड़ चुका है। बहुत हैरान, बहुत सरप्राइज होते हैं। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ? तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं। ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्सर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65 चैप्टर 9 पैरा 4 लाइन 2 कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान,
जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले गाड़ी छोड़ जाती। ओके, सो इस सीन में जब जो ईशान के जो टीचर हैं, आर्ट टीचर, वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, तो काफ़ी जो है वो ईशान के पेरेंट्स जो है वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। पहले तो जो उसकी टीचर हैं वो उसका आर्टिस्टिक जो उसका वर्क है उसको देख के पहले वो सरप्राइज हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो बाद में पेरेंट्स सरप्राइज हो जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने कभी भी अपने जो है वो बच्चे के पोटेंशियल को और उसके क्रिएटिविटी को कभी भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया, और वो एक प्रॉब्लम में है, डिस्लेक्सिया में। तो ये जो है वो उनकी नहीं काफ़ी जो है वो एम्बैरेसमेंट सिचुएशन भी होती है। ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन। यहाँ से इसके बाद से जो है वो जो टीचर हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे, इसको टीच करेंगे, इसको फिर जो है वो फिर अब जो है वो ईशान की इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो कनेक्टेड सीरीज ऑफ सीन्स उसको हम देखेंगे। ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन। Big enough to sail our boats. एक कुएं में रहता था, कुएं में रहता था, मेरा खिला साथा परिवार से in the moonlight, mighty nice. Mighty nice. Very good. अब 3 जोड़ो। Very good. अभी इसमें 5 जोड़ो। कहाँ पहुँचे? Very good. अभी 11 कम। Give me pen. They set off a nose between each pair of eyes. Roses, roses, every size. कोयल है चिड़ियों की रानी, कभी सुनी है उसकी रानी? Sinbad was dazzled by multicolored lights were made of cake and chocolate. ओके, तो इस सीन में जो कि this scene tells us the another theme of the movie, that how the teacher should help the student and how the teacher should teach the student. So, इस तरह से इस सीन में हम देख सकते हैं किस तरह से जो जो मिस्टर निकोम है, जो ईशान के आर्ट टीचर हैं, उन्होंने उनका सब्जेक्ट तो आर्ट है लेकिन उन्होंने ईशान को बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसकी हेल्प की, किस तरह से रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, और इस तरह से जो है वो ईशान के बारे में ये बात भी अंडरस्टैंड होती है सीन के थ्रू कि ईशान का माइंड डम नहीं होता है। ईशान को सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर था, जो कि अगर उसके ऊपर उसकी हेल्प की गई तो वो उसने इम्प्रूव किया और बहुत जल्दी इम्प्रूव किया, और इस तरह से जो है वो ईशान कैपेबल हो गया रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता। और फिर ईशान के लिए ये रिक्वेस्ट भी करते हैं उसके जो आर्ट टीचर हैं प्रिंसिपल से कि कुछ टाइम पीरियड के लिए इसके जो है वो उसको वर्बल टेस्ट पे रखा जाए, उसको रिटन टेस्ट नहीं ली जाए। और फिर जिस तरह से उसकी ग्रेड्स इंप्रूव होने लगे वर्बली, फिर उसके रिटन टेस्ट भी स्टार्ट हो गए। इस तरह से ये जो सीन है इसमें हमने देखा ईशान जो है वो किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है। दिस इज द थीम ऑफ द मूवी, हाउ टू टीच द स्टूडेंट एंड हाउ टू हेल्प द स्टूडेंट इन द डिसेबिलिटी with his disabilities, how to teach a student with disabilities. दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि
वो दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। Okay, so in this scene we can clearly see Mr. Nikum's effort. Mr. Nikum जो ईशान के टीचर हैं, उन्होंने किस तरह से ईशान के लिए बहुत एफर्ट की होती है, और वो ईशान जो है वो अब एक बेटर पर्सन बन गया, फाइनली एक डिसिप्लिन चाइल्ड बन गया, अपने काम खुद कर लेता है मैनेज। और इस तरह से we see that the positive words of teacher, how the positive word of teacher makes the positive attitude of the student. In this scene we can this is also the another theme of the movie, किस तरह से जो है वो पॉजिटिवली अगर स्टूडेंट को डील करें तो वो फिर रिस्पेक्ट भी करता है, और फिर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके बिहेवियर में हम देखते हैं। ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट सीन। तू धूप है झमसे बिखर, तू है नदियों में खबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। ओके, तो इस सीन में एक जो ईशान के जो टीचर हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ईशान के लिए स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, पेंटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें सारे ही टीचर्स और स्टूडेंट्स ओपनली इनवाइटेड होते हैं ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी ऑफ आर्ट को शो कर सकें वहाँ पे आके। ईशान भी यहाँ पे आके अपना जो है वो जो टैलेंट है उसको शो करता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि ईशान जो है वो अपने जो है वो टैलेंट की वजह से लोगों के बीच में स्टैंड हो सके। जो उसका एक इमेज बन गया है ना, जो उसका एक स्कूल में जो लोग उसके बारे में एक इमेज, उसका जो डाउन इमेज है, उसको अपग्रेड करने के लिए उसके जो टीचर हैं उसने ये उनको इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि ईशान जब यहाँ पे आके पेंटिंग करेगा तो वो ज़रूर कोई क्रिएटिविटी जो है वो देखने को मिलेगी, इसलिए वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सीन। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया, मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया, मिल गया, रोशन हुई सारी ज़मीं, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहाँ। धूप है शम्से बिखर, तू है नदियों में खबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। Okay, so this scene is the climax of the movie. This is the most emotional scene we have seen. अभी तक जो मूवी में हमने देखा सबसे इमोशनल सीन इसे कह सकते हैं मूवी का। और इस सीन में हम देख सकते हैं किस तरह से इमोशंस दिखाए गए हैं।
डीप इमोशंस बिटवीन ईशान एंड हिज टीचर। उसके टीचर ही हैं जिसका जो से अब तक जो है वो डीपली अंडरस्टैंड कर सके हैं उसके उसकी फीलिंग्स को और उसके माइंड को। और अभी जो उसने जो पेंटिंग बनाई है बहुत ही क्रिएटिव पेंटिंग है, और यहीं से जो है वो ईशान जो है वो अपने टैलेंट के बारे में जो है कॉन्फिडेंट फील करेगा और आगे जो है वो बाकी जगह भी इम्प्रूव करेगा। उसके जो ग्रेड्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। ओके, लेट्स वॉच द नेक्स्ट। क्या करें, क्या करें? लाजमी जी धर्म संकट में। खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंच गए। उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना है। जी हाँ बच्चों, ये जो आपके निकुंज सर है ना, हार गए हैं, और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना 9 साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी Okay, this scene is the resolution, means this is the ending of a movie. इस सीन में हमने देखा कि किस तरह से प्रिंसिपल ने जब रिजल्ट अनाउंस किए तो ईशान जो है वो इस कॉन्टेस्ट में विन कर लेता है। ईशान विनर होता है और फिर इसकी जो विक्ट्री है, ईशान की विक्ट्री उसे हेल्प करती है और अच्छा बेटर पर्सन बनने के लिए स्कूल में भी और फैमिली में भी। अब वो एक डिसिप्लिन बच्चा समझा जाता है, स्कूल में भी फैमिली में भी उसकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है और वो दोबारा से एक स्मार्ट और जो वो हैप्पी चाइल्ड बन जाता है। सो दिस इज द होल प्लॉट वी हैव डिस्कस्ड व्हाइल वाचिंग अ मूवी। इस तरह से पूरे मूवी में हमने प्लॉट भी डिस्कस किया, साथ साथ हमने देखा किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स फेस किया ईशान ने, ठीक है, क्या प्रॉब्लम उसने फेस की और फिर किस तरह से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके टीचर निकालते हैं और किस तरह से हमें डिफरेंट थीम्स हमने जो है वो डिस्कस की। यहाँ पे जो मूवी की मेन थीम है यही है कि चिल्ड्रन आर लाइक स्टार्स ऑन अर्थ एंड दे ऑल आर स्पेशल इन देयर ओन वे। तो टीचर्स जो है वो टीचर्स का क्या एटीट्यूड होना चाहिए और पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये जो है वो मूवी में हमें मैसेज मिलता है इस मूवी के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर होमवर्क टू वॉच अ मूवी अगेन। वॉच योर फेवरेट मूवी, वॉच एनी ऑफ योर फेवरेट मूवी एंड देन गिव अ मूवी रिव्यू। एंड मूवी रिव्यू जिसमें आपने डिस्कस करना है तमाम एलिमेंट्स को, जिस तरह से आपने इस मूवी में देखा एलिमेंट्स भी हमने रिलेट किए। सो इन द सेम वे यू विल read a writing workshop and
give a movie review discussing all the elements of a movie. Okay, so okay, thank you students. Allah Hafiz.